वेलकम बैक। न्यूज 18 से खास बातचीत में एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान को खारिज करते हुए दावा किया कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। I'm not too well. I have a problem of blood pressure, I have a problem of heart, I am also a transplanted patient. And I am arrested in the house. Whatever the Home Minister says is totally baseless. I was not allowed to leave. Nobody is allowed to come into my house. I have a DSP posted outside. How dare anybody comes? So much so that between my daughter's house and sister's house, the door that was there, on the very first day lock was put on it. We had to shout and say, what is this happening? What do you want to do? And this has happened to Sheikh Mohammed Abdullah's son, Yes. who handed over Jammu and Kashmir to Government of India, Yes. who chose secular India to religious Pakistan. Yes, yes. You feel hurt today? I feel, I don't have words to say. You're crying, But Dr. how Saab. can India do this to a state which joined the nation on the basis of secular India, democratic India? This is not democratic India. Will you go to the This is grave of dictator. your father and weep and cry there? I'll cry everywhere because it's something we never thought will ever come to our people. Never. It has never been part of our life. We gave our life to stand with this country. Can they forget? How many of our people have died? That I am sitting in the house inside of my own will. You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India, secular India for all. Whatever your religion, whatever your region. Not India. So it's a very emotional statement that you're making. Is this unconstitutional? Is this undemocratic? It is totally undemocratic. What are you going to do now? What are you going to do now, Daksa? What are you going to do now? Could they not wait? I don't even believe in their gun. What's your future course of action? What are you going to do I next? think it's all false. Doctor, how much you are expecting yesterday Amit Shah's statement? After 70 years, the issue has been vanished within 5 minutes. 70 years they have stabbed the people of this state. What are you going to do next, sir? What would be your future course of action? As soon as the gates will open, our people will be out. We will fight, we will go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here! Not into my back. For I stood for this nation. Farooq Saab. मैं सब बराबर हैं. Doctor, right now, where is Umar Abdullah? My son is in jail. And I do not know how many more poor people will be in jail. Your father was also sent jail. Sir, your father was also sent jail. Do you think now Umar Abdullah has been jailed now again? I think this is the price we'll continue to pay to make India democratic, to make India secular. But you are believing in India like anything. Do you think that the belief is gone now? डिबेट चल रही है, काफी लोग बहस कर रहे हैं. आपको लगता है हूँ कि वहाँ पे ऐसी सभा में हमारे होम मिनिस्टर साहब झूठ बोले, ये मैं जो उम्मीद नहीं थी. फारूक साहब, आपने कभी सोचा था ऐसा दावा आएगा? आपने कभी सोचा था अमित शाह कह रहे हैं कि 370 सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है. फारूक साहब, अमित शाह कह रहे हैं 370 और 35A की वजह से विकास नहीं हुआ कश्मीर का, और अभी भी आप लोग नहीं होने दे रहे हैं. और साथ में ये भी कहा 370 तीन खानदानों की. बताइए फारूक साहब. उनको ये शुक्र करना चाहिए कि वो खानदान के साथ खड़े रहे. क्या आप भी खड़े हैं? क्या आप भी खड़े हैं? डॉक्टर साहब, क्या आप भी वो खड़े हैं? आप पर इल्जाम लगाते हैं सर, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं. वो कह रहे हैं 3 परिवारों ने सियासत की है सिर्फ कश्मीर में. लगाते हैं. जी
अगर उन्हें ये दूसरा हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा तो But why you didn't go to parliament, sir? It was an important mission. when my doors are locked, you want my security people to be dismissed? But few days back, sir said you are not feeling well. That's the reason you cannot go. I'm not well even today. Means you are not expecting this kind of a decision. Nobody expected. You ask anybody. Sir, तरीके से आपने देखा काफी इमोशनल हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि ये बैक स्टेपिंग हुई, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा फैसला होगा। हालांकि मैंने सवाल उनसे पूछा था कि आप पार्लियामेंट नहीं गए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन था, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। तो फिलहाल अब देखना होगा नेक्स्ट कोर्स क्या होगा एक्शन का, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि इन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया है और उमर अब्दुल्ला को जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जो उसको सब जेल का नाम भी दिया जाता है, जो चश्माशाही एरिया में हट है, वहां पे जब भी कोई यहाँ पे हालात खराब हो जाते थे तो हुर्रियत के जो लीडर्स थे उनको वहां पे भेजा जाता था। तो आज उमर अब्दुल्ला भी या महबूबा मुफ्ती भी या वो सभी लोग जो यहाँ पे खासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टीज थी जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो इंडिया का झंडा यहाँ पे लहरा रहे हैं, तो आज उनको जेल भेजा गया है। फारूक अब्दुल्ला आज बहुत ही इमोशनल हो गए, लिटरली वो रोए यहाँ पे और कहा कि होम मिनिस्टर ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की है, धोखा दिया है और वो कभी भी इंडिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना, लेकिन इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद नहीं किया गया। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। तो आपने अमित शाह गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुना कि उन्हें किसी तरह से नजरबंद नहीं किया गया, वो अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जहां तक नजरबंद किए जाने की बात है, जिसका जिक्र फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला ये बात कहते हुए जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पर पीछे से हमला कोई करे इस बात को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। और तमाम बातों के साथ साथ उन्होंने उमर अब्दुल्ला का जिक्र भी किया कि उसे भी जेल में भेज दिया गया है। और ये कहते हुए कई बार ऐसा मौका आया पत्रकारों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इंडिया नहीं उम्मीद करता, मैं ऐसे भारत की उम्मीद नहीं करता, मैं एक सेक्युलर भारत की उम्मीद करता हूं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है और जब वहां जम्मू कश्मीर के लोगों का ऐसा पता चलेगा तो बड़ा असर होगा। फारूक अब्दुल्ला ने इशारों में ये बात भी कही है। अमित शाह ने क्या कहा है एक बार फिर से सुनिए। फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद नहीं किया गया था। इस पर मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी